Hello everyone. So this lecture is totally based on your revised summarized lecture for chapter number 12, atoms. In this chapter we have seen firstly the historical experiments for the atomic structure. First we have seen Thomson model and what were the drawbacks for this model. Then we have seen very most important historical experiment done by two scientists, Geiger and Marsden, alpha particle scattering experiment. So, in that experiment, the main aim was to study the structure of an atom. What are the basic constituents of the atoms and what are their arrangements? So, on the basis of that experiment, we have calculated the size of the nucleus, the size of the atom, and the basic arrangement for the constituent particles. Then we have seen spectral series for that, and we have seen 5 spectral series in different regions. We have seen Lyman series, Balmer series, Paschen series, Brackett and Piffin series. These 5 series are in different regions, and for that series Balmer derived a basic formula for the wavelength, and on the basis of those formulas we have so many MCQs from this chapter. These MCQs are very important for your board examination as well your good set examination. Then we have seen Bohr atomic model. We have studied 3 important hypotheses of the model, and on the basis of those hypotheses we have finalized our atomic model. Then in last we have studied Bohr quantization condition. So these are the basic topics which we have already covered in the lectures in detail. So this lecture is totally based on summary, or we can say revised summary of this chapter. So first we will start alpha scattering experiment. In this experiment we have seen alpha particles are bombarded on gold foil, and we have seen how the alpha particles are scattered and at which angle we got maximum alpha particles. So जब ये एक्सपेरिमेंट हमने स्टार्ट किया था इन डिटेल, जब हमने लेक्चर में इसको स्टडी किया था तब हमें इस अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के मेन एपरेटस सारे हमने डिटेल में स्टडी किए थे. फॉर अल्फ़ा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट in Geiger-Marsden experiment we have used bismuth as a source of alpha particle. Then we have lead bricks, then gold foil, then zinc sulfide screen and detector. So ये सारे apparatus की हेल्प से हमने इस एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुली कंप्लीट किया था, और उसी एक्सपेरिमेंट से हमें इतनी डिटेल्स मिली और उसी से हमने 2 पैरामीटर्स को एक्सप्लेन किया था. द फर्स्ट पैरामीटर वॉज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच एंड द सेकेंड वन इज इम्पैक्ट पैरामीटर. सो उसी एक्सपेरिमेंट के जो कंक्लूजन्स थे, जो फाइनल रिजल्ट्स थे, उसी रिजल्ट्स को हमने यहाँ पे नोट डाउन किया है. नंबर 1, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल स्ट्रेट अवे अनडिफ्लेक्टेड. Some of them are deflected through small angles. A few alpha particles, 1 in 1000, are deflected through the angle more than 90 degree. A few alpha particles, very few, returned back. It means deflected by 180 degree. और हमने ये इसी अल्फा पार्टिकल का जब हमने स्टडी किया था कि एक अल्फा पार्टिकल इन 10⁴ सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल हमने 180 डिग्री पे रिटर्न बैक जाते हुए हमने ऑब्जर्व किया. अगर ये अल्फ़ा पार्टिकल जिसकी एनर्जी इस एक्सपेरिमेंट में 5.5 MeV थी, इतनी हाई एनर्जी का पार्टिकल जब अपने पाथ से रिटर्न बैक डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, इसका मतलब वो उसी पाथ से वापस रिटर्न हो गया.
इट मीन्स अल्फा पार्टिकल्स जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उसी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को किसी अदर पार्टिकल ने रिपल्सिव फोर्स के द्वारा उसको 180 डिग्री पे रिटर्न बैक किया। इसका मतलब अल्फा पार्टिकल के पाथ में कहीं पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का ग्रुप होगा, उसी पॉजिटिव पार्टिकल के ग्रुप ने रिपल्सिव फोर्स के थ्रू इस अल्फा पार्टिकल को 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट किया। सो इसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का ग्रुप, इट मीन्स हमने उसको नोमेनक्लेचर किया उसका न्यूक्लियस। सो वहाँ से हमें एक चीज़ पता चली कि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे और उस न्यूक्लियस की साइज़ होगी 10⁻15 मीटर के अराउंड और पूरे एटम की साइज़ होगी 10⁻10 मीटर। अब कितने पार्टिकल्स, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल का एक डायरेक्ट रिलेशन जो हमने उस डिटेल लेक्चर में जो स्टडी किया था, उस लेक्चर में हमें जो डिटेल दी थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये पॉइंट नंबर 5 है, जिस फार्मूला का हम मैक्सिमम यूज़ करेंगे हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम में। सो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स एंड प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2 और उसी अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग का ग्राफ, मतलब नंबर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स स्कैटरिंग थ्रू द गोल्ड फॉइल एंड एंगल, उसी का ग्राफ हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। उस ग्राफ से हमें ये सारे रिजल्ट पता चले कितने एंगल पे कितने पार्टिकल्स स्कैटर्ड हुए। नाउ पॉइंट नंबर 6, इफ़ टाउ इज़ द थिकनेस ऑफ द फॉइल and n is the number of alpha particles scattered in a particular direction theta, which is equal to constant, then n by tau is equal to constant. It means n1 by n2 is equal to tau1 by tau2. Point number 6 is also very important for your MCQ examination. Now the last point, distance of closest approach. ये सेकेंड पैरामीटर जो हमने इस एक्सपेरिमेंट से स्टडी किया था। क्लोजेस्ट डिस्टेंस मतलब हो जाएगा कि किसी अल्फ़ा पार्टिकल ने न्यूक्लियस को कितने क्लोज तक अप्रोच किया होगा। जब अल्फ़ा पार्टिकल अपने सोर्स से बाहर निकलेगा वो एक काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा, उस काइनेटिक एनर्जी के साथ, उस स्पीड के साथ वो न्यूक्लियस को अप्रोच करेगा। एक पॉइंट पे जाके वो पार्टिकल वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, इट मीन्स उसकी स्पीड 0 और वो वहाँ से रिटर्न बैक होगा। इट मीन्स जिस पॉइंट पे वो स्टॉप हो जाएगा उसका फाइनल पॉइंट जहाँ पे उसकी स्पीड 0 होगी, उस पॉइंट पे वो टोटल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में। सो उस पॉइंट तक उस अल्फ़ा पार्टिकल ने न्यूक्लियस को अप्रोच किया, वो मिनिमम डिस्टेंस मतलब हो जाएगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। सो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ mv², विच इज़ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी kq1q2/r। सेम फार्मूला जो चैप्टर नंबर 2 में हमने यूज़ किया था, kq1q2/r। q1 इट मीन्स चार्ज ऑफ एन अल्फ़ा पार्टिकल इनटू q2 मीन्स चार्ज ऑफ एन जो भी हमने एटम वहाँ पे कंसीडर किया। हमने वहाँ पे गोल्ड फॉइल यूज़ की थी तो इसलिए हमने यहाँ पे Ze लिखा है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। सो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस हमने अप्रोच किया उस r0 को हमने यहाँ पे डिनोट किया, r0 विच इज़ इक्वल टू Z²/mv² πε0, या फिर k को हमने यहाँ से डिनोट किया k इज इक्वल टू 1/4 πε0। सो उसी के अकॉर्डिंग ये फार्मूला होगा 4k Z²/mv²। सो मिनिमम कितने डिस्टेंस तक हमने ट्रैवल किया, न्यूक्लियस को अप्रोच किया, उस डिस्टेंस को हमने नाम दिया है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। सो ये एक बेसिक फार्मूला फॉर द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। नाउ रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आफ्टर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फॉलोइंग कंक्लूजन्स वर मेड बाय रुदरफोर्ड। अब रुदरफोर्ड ने उसी एक्सपेरिमेंट से कितने कंक्लूजन बनाए, बिकॉज इस एक्सपेरिमेंट को किया था रुदरफोर्ड के दोनों स्टूडेंट कीगर एंड मास्टर ने। अब उसी एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे कंक्लूजन हमने ऑलरेडी आगे देखे। अब रुदरफोर्ड ने खुद इस एक्सपेरिमेंट से कितने कंक्लूजन निकाले। तो फर्स्ट, साइज ऑफ द न्यूक्लियस एंड सेकेंड, साइज ऑफ द एटम। अब फर्स्ट कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ द मास at least 99.95% and all of the charge of an atom
concentrated in a very small region is called atomic nucleus. So किसी भी एटम का मैक्सिमम मास और उसका चार्ज एक सेंट्रल रीजन में कॉन्सेंट्रेट होगा, उसी सेंट्रल रीजन को हमने नाम दिया न्यूक्लियस. देन पॉइंट नंबर 2, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड इट्स साइज इज ऑफ the order of 10⁻⁻15 meter, which is almost equal to 1 Fermi, and the nucleus occupies only about 10⁻12 of the total volume of the atom or less. It means 10⁻3 to 10⁻4 जितना पार्ट हमारा एम्प्टी स्पेस होगा. रियलिटी में अगर हमने इसी को एक प्रॉपर स्टेटमेंट में अगर इसको लिखेंगे या फिर एक प्रॉपर वैल्यू के साथ, तो हमें पता है एटम की साइज 10⁻10 होगा एंड न्यूक्लियस की साइज 10⁻15. सो एटम एंड न्यूक्लियस के बीच में अराउंड 10⁻5 जितनी एम्प्टी स्पेस होगी. देन थर्ड पॉइंट, इन एन एटम देयर इज मैक्सिमम एम्प्टी स्पेस एंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. और उसी स्पेस के बाद ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे. देन बोर्स एटॉमिक मॉडल. अब इसी रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो ड्रॉबैक था जिससे हम एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, जैसे रुथरफोर्ड मॉडल में हमने फाइनली एक स्टेटमेंट दिया था कि न्यूक्लियस सेंटर में होगा. इट मीन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का एक ग्रुप होगा सेंटर में और उसी ग्रुप के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा. अगर पॉजिटिव चार्ज सेंटर में, नेगेटिव चार्ज उसके अराउंड रिवॉल्व करेगा, तो इट मीन्स दोनों के बीच में कोलम्बियन अट्रैक्टिव फोर्स होगा. अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अप्लाई होगा तो उस चार्ज पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा. तो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करता जाएगा. अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करेगा तो इट मीन्स उसका पाथ, इट मीन्स ऑर्बिट की रेडियस डिक्रीज होती जाएगी और धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा. सो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे रुथरफोर्ड. इसी मॉडल को हमने सोलार प्लैनेटरी मॉडल के साथ कंपेयर भी किया था. तो इसी मॉडल में क्या करेक्शन हो सकते हैं उसी को बोहर ने 3 हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन किया. सो बोहर्स एटॉमिक मॉडल. बोहर प्रपोज्ड अ मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम which is also applicable for some lighter atoms in which a single electron revolves around a stationary nucleus of positively charged Ze called hydrogen-like atom. Bohr's model is based on the following postulates. First one, an electron in an atom can move around the nucleus in certain circular stable orbits without emitting radiation. इसी ऑर्बिट को हमने स्टेशनरी ऑर्बिट बोला था. Second point, Bohr found that the magnitude of the electron's angular momentum is quantized. It means L is equal to mv/r which is equal to nh upon 2 pi. जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ऑलवेज क्वांटाइज्ड होगा. तो क्वांटाइजेशन कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई की थी h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल इंटीग्रल में. सो n is equal to 1 to 3. Each value of n corresponds to a permitted value of the orbit radius Rn, which is equal to radius of nth orbit, and Vn, which is equal to corresponding speed. Last point, the radiation of energy occurs only when an electron jumps from one permitted orbit to another. और इलेक्ट्रॉन का एनर्जी एमिशन, इसको भी हमने पोस्टुलेट में एक्सप्लेन किया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करेगा उस कंडीशन में वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप के जितना, मतलब दोनों एनर्जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी का एक फोटोन एमिट कर सकता है. सो एनर्जी रेडिएशन भी पॉसिबल है, बट कंडीशन क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कंपलसरी होगा. अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करेगा तब वो एक एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा. देन बोर्स ऑर्बिट. अब यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला स्टार्ट होंगे. सो हमने ऑलरेडी इस सारे फार्मूलाज की लिस्ट भी डिटेल सॉल्यूशन में और डिटेल लेक्चर नोट्स में बनाई भी थी. तो यहाँ पे एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे. फर्स्ट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट Rn is equal to n square h square upon 4 pi square kz m square.
which is equal to n square h square epsilon 0 upon pi z m e square which is equal to 0.53 n square by z एमस्ट्रॉन्ग, जहाँ पे हमने 0.53 इस सारे कांस्टेंट की वैल्यू अप्लाई की, h स्क्वायर एप्सिलॉन 0 पाई m एंड e स्क्वायर। यहाँ पे इस फॉर्मूला में जो वेरिएबल वैल्यू होगी वो n स्क्वायर एंड z एटम टू एटम। सो r proportional to n square by z, which is most important formula. Then second one, speed of an electron. Vn is equal to 2 pi kz square upon nh, which is equal to z square upon 2 epsilon 0 nh, which is equal to c by 137 z by n. ये आपका एक MCQ इसी फॉर्मेट में आपको बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। c by 137 ये एक हमें फॉर्मूला डायरेक्ट कांस्टेंट की वैल्यू याद रखनी है। c मीन्स स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 137। सो स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में हमने स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंट्रोड्यूस किया। सो डायरेक्ट फार्मूला होगा Vn इज इक्वल टू c अपॉन 137 इंटू z बाई n। If we take this formula for the hydrogen, then z is equal to 1 and n is equal to 1. So for the hydrogen atom, Vn is equal to c by 137, which is equal to 2.2 into 10⁶ z by n meter per second. Now some other quantities for revolution of electron in nth orbit. अब सारे क्वांटिटीज़ हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन एंगुलर स्पीड, जिसका डिटेल डेरिवेशन हमने स्टडी किया था लेक्चर्स में। ओमेगा एन विच इज़ इक्वल टू वी एन अपॉन आर एन। सिंपल सा फार्मूला v इज इक्वल टू ओमेगा आर, उसी फार्मूला से हमने वी एन अपॉन आर एन किया। वी एन इट मीन्स हमने यहाँ से वी एन की एक इक्वेशन यूज़ की और यहाँ से आर एन की, दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड किया। सो फाइनल फार्मूला में मिला पाई एम जेड स्क्वायर e⁴ अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 स्क्वायर एन क्यूब एक्स क्यूब। सो ओमेगा एन directly proportional to z square, inversely proportional to n cube, which is very most important formula for your MCQ. Now frequency is equal to omega upon 2 pi, because we know omega is equal to 2 pi f, so frequency is equal to omega upon 2 pi. तो सेम फार्मूला को सिर्फ हमें 2 पाई से डिवाइड करना है, तो फाइनल हमें फ्रीक्वेंसी का रिलेशन मिलेगा z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। अब इसी रिलेशन को हम इन्वर्स करेंगे, देन वी गेट टाइम पीरियड। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। सो सेम रिलेशन हमें मिलेगा बट इन्वर्स फॉर्म में। सो टी एन प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर। देन एंगुलर मोमेंटम जो हमने बोर हाइपोथेसिस में एक्सप्लेन किया था, सेकेंड हाइपोथेसिस, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। देन करस्पॉन्डिंग करंट। अब ये करंट का फॉर्मूला हमने एनसीईआरटी के चैप्टर में, मतलब एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में स्टडी नहीं किया था, बट सिंपल सा फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, 1 अपॉन टाइम विच इज़ इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली यूज़ किया आई इज इक्वल टू ई इंटू फ्रीक्वेंसी। सो इसी फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में हमने सिर्फ ई को मल्टीप्लाई किया, तो e⁴ के प्लेस पे यहाँ पे e⁵ होगा। सो करस्पॉन्डिंग करंट के लिए रिलेशन क्या होगा, z स्क्वायर अपॉन n क्यूब। मैग्नेटिक मोमेंट जो हमें चैप्टर नंबर 5 में आएगा। सो अगर इसको हम सिर्फ MCQ के फॉर्म में याद रखेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट होगा I इंटू ए। I मीन्स करंट एंड A मीन्स एरिया। सो I इंटू ए विच इज़ इक्वल टू I इंटू पाई आर स्क्वायर। सो I का रिलेशन यहाँ से मिलेगा एंड आर एंड इट मीन्स रेडियस का रिलेशन हमें फर्स्ट फार्मूला से मिलेगा, इस रेडियस से। सो इस दोनों फार्मूला को अगर हम कंबाइन करेंगे तो हमारा फाइनल फार्मूला होगा यहाँ पे म्यू नॉट विच इज़ इक्वल टू EH अपॉन 4 पाई m। सो इसी इक्वेशन में अगर हम दोनों इक्वेशन को पुट करेंगे करंट एंड रेडियस, हो तब हमें एक फाइनल फॉर्मेट मिलेगा। तो फाइनल फॉर्मेट हमने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया, बट उस फॉर्मेट से हमें डायरेक्टली मैग्नेटिक मोमेंट का रिलेशन मिलेगा एम एन प्रोपोर्शनल टू एन। एंड द लास्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड V इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r। अब ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 4 में स्टडी करेंगे। सो चैप्टर नंबर 4 के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन होगा z³ अपॉन n⁵।
सो फॉर्मूला नंबर 5, 6 एंड 7 जो प्रीवियस चैप्टर्स के सारे रिलेशन है, बट आपको एमसीक्यू के लिए ये यूज़फुल हो सकते हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। अदरवाइज इस चैप्टर के रिलेटेड हमारे पास 1 to 4 फार्मूलाज, देन स्पीड एंड रेडियस का फार्मूला, ये 6 फार्मूला हमने ऑलरेडी डिटेल लेक्चर में डिराइव भी किए हैं। सो अब सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला स्टार्ट होगा एनर्जी का, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी U is equal to K Q1 Q2 by R. Q1 it means न्यूक्लियस का चार्ज into Q2 means इलेक्ट्रॉन का चार्ज, सो माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एल। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, जिसको हमने डिराइव किया और फाइनली इसको हमने इस फॉर्मेट में लिखा के जेड स्क्वायर अपॉन 2 आर एल विच इज़ इक्वल टू यू बाई 2। सो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का एक रिलेशन मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। देन टोटल एनर्जी विच इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो हमें एक फाइनल रिलेशन मिलेगा। अब उसी टोटल एनर्जी का जो फॉर्मूला मिलेगा, उसी फॉर्मूला में हमें रेडियस की इक्वेशन पुट की, सो हमें उसी को सॉल्व करके फाइनल आंसर मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रेडबर्ग कांस्टेंट आर, speed of light c and Planck's constant h. So minus rch into z square by n square which is equal to minus 13.6 z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहाँ पे हमने r को रिप्लेस किया था me⁴/8 एप्सिलॉन 0 ch क्यूब से। सो ये डायरेक्ट रिलेशन आपको याद रखना है। मे भी आपको एमसीक्यू एग्जामिनेशन ये भी ऑप्शन एनर्जी के लिए दिखेगा इन टर्म्स ऑफ r, c एंड h। तो एक डायरेक्ट रिलेशन आपको याद होगा, तो आप डायरेक्टली इस ऑप्शन को टिक कर सकते हो। सो नेक्स्ट वन इज आयोनाइजेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन का मतलब होगा हमने बाहर से इतनी एनर्जी प्रोवाइड की कि वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट से नॉकआउट हो जाएगा। सो अनबाउंड करने के लिए जो हमने एनर्जी प्रोवाइड की उसी को आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, और जिस एनर्जी से सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में एक्साइट होकर मूव करेगा उसको हम एक्साइटेशन एनर्जी बोलेंगे। सो फर्स्ट वी विल स्टडी आयोनाइजेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल। सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज एन एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द प्रेजेंट ऑर्बिट टू द इनफाइनाइट ऑर्बिट। इट मीन्स हमने उसको अनबाउंड कर लिया। So E ionization is equal to E infinity minus En which is equal to 0 minus 13.6 z square by n square। So इसी से हमें आयोनाइजेशन एनर्जी का एक रिलेशन जो पॉजिटिव आएगा, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, हमें इस फॉर्मूला से पता चलेगा। सो प्लस 13.6 z square by n square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट E ionization is equal to प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स अगर हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे तो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में होगा। अगर उसी ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को हमें नॉकआउट करना होगा, अनबाउंड करना होगा, तो ग्राउंड स्टेट में जितनी एनर्जी होगी उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी उसको सप्लाई करेंगे। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन के पास ग्राउंड स्टेट में माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी, हमने इसी एनर्जी को पॉजिटिव करके प्रोवाइड की प्लस 13.6, देन इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट से डायरेक्टली नॉकआउट हो जाएगा। सो आयोनाइजेशन का मतलब होगा अनबाउंड द इलेक्ट्रॉन। द पोटेंशियल थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन नीड्स टू बी एक्सेलरेटेड सो दैट इट एक्वायर्स एनर्जी इक्वल टू द आयोनाइजेशन एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सो V आयोनाइजेशन इज इक्वल टू E आयोनाइजेशन अपॉन E। नाउ एक्साइटेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल। अब एक्साइटेशन का मतलब क्या होगा, हमने इतनी एनर्जी प्रोवाइड की कि वो इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करेगा। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट एन एटम इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ द पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट एंड करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल इज कॉल्ड एक्साइटिंग पोटेंशियल। सो E एक्साइटेशन इज इक्वल टू E फाइनल माइनस E इनिशियल एंड V एक्साइटेशन इज इक्वल टू E एक्साइटेशन अपॉन E। सो डायरेक्टली हमने आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ही कंसेप्ट यूज़ करके
एक्साइटेशन पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई किया. नाउ binding energy of a system is defined as the energy released when its constituents are brought from infinity to form the system. The binding energy of a hydrogen atom is 13.6 eV, जिस एनर्जी की वजह से सारे constituent particles bounded रहेंगे. When an electron makes a transition from higher energy level having energy E2 and state N2 to a lower energy level having energy E1 and state N1, then a photon of frequency nu is emitted. So E2 minus E1 is equal to hν. So अब हम एनर्जी का रिलेशन यहाँ से हमें फाइंड आउट करेंगे. तो डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1. एनर्जी का रिलेशन R, C एंड H के टर्म में, इट मीन्स रेडबर्ग कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट के टर्म में माइनस RCH Z² अपॉन N2 स्क्वायर माइनस RCH Z² अपॉन N1 स्क्वायर. सो डायरेक्ट रिलेशन हमें मिलेगा प्लस 13.6 Z² इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर. नाउ इसी फार्मूला से अगर हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू. सो न्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच. सो इसी फार्मूला में हमें एच को मल्टीप्लाई करना, मतलब डिवाइड करना है डेल्टा ई अपॉन एच. सो आर सी जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर. सो जो न्यूमरेटर में जो एच था उसी एच को हमने इस डिनोमिनेटर वाले एच से कैंसिल कर दिया. सो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा आर सी जेड स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर. सो ये सारे फॉर्मूलाज अब हम जो डिराइव करेंगे वो रेडबर्ग कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में होंगे. सो ये सारे फॉर्मूलाज आपको आपकी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं. एज वेल आपने जो अपने थ्योरी लेक्चर्स में जो फॉर्मूलाज कैलकुलेट डिराइव किए थे वो सारे भी आपने नोट डाउन किए हैं. तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको MCQ में यूजफुल रहेंगे. नाउ थर्ड वन इज वेव नंबर और वेव लेंथ. वेव नंबर इज द नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ. इट मीन्स V bar which is equal to 1 upon lambda which is equal to nu by c which is equal to 1 upon lambda is equal to. अब 1 upon lambda का मतलब ये होगा कि हमने डायरेक्टली रेडबर्ग का एक फार्मूला यूज़ किया, एक फॉर्मेट यूज़ किया, बट उसी फॉर्मेट को हमने एनर्जी के टर्म में यूज़ किया बिकॉज वी नो E इज इक्वल टू एच न्यू. सो न्यू बाई सी, अब उसी फार्मूला से हमने 1 अपॉन लैम्बडा को डिराइव किया. सो 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square which is equal to 13.6 Z square by H into C 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square. सो यहाँ से हमने रेडबर्ग फार्मूला के टर्म में पहले फार्मूला देखा और सेकंड H एंड C के टर्म में. तो दोनों फार्मूला सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी, बट फर्स्ट में हमने रेडबर्ग कांस्टेंट यूज़ किया और सेकंड में उसको अवॉइड करके एनर्जी के टर्म को यूज़ करके H एंड C के टर्म में फॉर्मूला डिराइव किया. नाउ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स. इफ एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी ऑर्बिट टू लोअर एनर्जी ऑर्बिट it emits radiations with various spectral lines. If electron falls from orbit N2 to N1, then the number of spectral lines emitted is given by. This is also very most important formula. आप इस formula से डायरेक्ट नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स कैलकुलेट कर सकते हो. सो ये भी आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में एज वेल एज गुड सेट एग्जामिनेशन में आपको यूजफुल हो सकता है. सो NE इज इक्वल टू N2 माइनस N1 प्लस 1 इंटू N2 माइनस N1 अपॉन 2. ये डायरेक्ट फार्मूला से आप इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज कैलकुलेट कर सकते हो. इफ इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम nth ऑर्बिट टू ग्राउंड स्टेट, इट मीन्स N2 इज इक्वल टू n and N1 is equal to 1, then number of spectral lines emitted NE is equal to n into n minus 1 by 2. अगर किसी भी ऑर्बिट से nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन होगा तो हम डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ करेंगे. हम इसी फार्मूला से ये डिराइव कर सकते हैं. अगर ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन होगा तो N1 की वैल्यू 1 होगी, सो माइनस 1 प्लस 1 यहाँ से कैंसिल होगा, तो फाइनल फार्मूला हमारे पास बचेगा n इंटू एन माइनस 1 बाई 2. तो सेम फार्मूला से हमने ये फार्मूला डिराइव किया. सो आपको एक ही फार्मूला याद रखना है, उसी फार्मूला से आप ग्राउंड स्टेट के लिए भी ये फार्मूला याद रख सकते हो.
Now point number 5. Point number 5 is recoiling of an atom. Due to the transition of electron, photon is emitted and the atom is recoiled. Recoil momentum of atom is equal to momentum of photon. जितने मोमेंटम से फोटोन एमिट होगा उतना ही रिकॉइल मोमेंटम एटम को मिलेगा. सो ये मोमेंटम कितना होगा, इस मोमेंटम को हमने कैलकुलेट किया P इज इक्वल टू एच बाई लेमडा, जो हमने फोटोन के लिए मोमेंटम का फॉर्मूला और वेवलेंथ का फॉर्मूला यूज़ किया था. सो लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी. सो P इज इक्वल टू एच बाई लेमडा. So h by lambda is equal to h r z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. Recoil energy of atom is equal to p square by 2m, which is equal to h square upon 2m lambda square. So ये पॉइंट नंबर 5, ये भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट फार्मूला. सो इस लेक्चर के अंदर हमने जितने भी फार्मूलाज का डेरिवेशन देखा है ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर्स में, ये सारे फार्मूलाज हमने ऐड किए. बट उसी के साथ ऐसे फार्मूलाज भी आपको यहाँ पे मैंने ऐड करके लिखे हैं जो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी यूज़फुल हो सकते हैं. सो ये फार्मूला आपको NCERT में कहीं नहीं मिलेंगे. हमने ना इसको डिराइव किया है, ना इसको हमने प्रॉपर्ली डिटेल में स्टडी किया है, बट ये सारे फार्मूलाज आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल है. सो ये सारे फार्मूलाज की लिस्ट आपको पहले बनानी है. इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से MCQ स्टार्ट करेंगे. Hydrogen spectrum and spectral series. The spectral lines arising from the transition of electron forms a spectral series. Mainly, there are the 5 series, and each series is named after its discoverer as Lyman series, Balmer series, Parston series, Beckett series, and Wheaton series. Point number 2. According to the Bohr's theory, the wavelength of the radiations emitted from hydrogen atom is given by 1 upon lambda is equal to r 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, where lambda is equal to n1 square n2 square upon n2 square minus n1 square into r, which is equal to n1 square upon 1 minus n1 square upon n2 square into r. So ये सारे डिटेल फार्मूलाज हमने ऑलरेडी थ्योरी लेक्चर में भी इंक्लूड किए थे. इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने पांचों सीरीज़ के लिए पूरा टेबल भी स्टडी किया था. सेम टेबल यहाँ पे हमने इंक्लूड किया. फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज इज कॉल्ड फर्स्ट मेंबर. फॉर दिस लाइन वेवलेंथ इज मैक्सिमम लैम्बडा मैक्सिमम. फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ n1 इज इक्वल टू n, देन n2 इज इक्वल टू n प्लस 1. सीरीज़ जहाँ से स्टार्ट होगी उसी नंबर के बाद वाला नंबर. अगर हमने 11 सीरीज़ का एग्जांपल लिया तो सीरीज स्टार्ट होगी n1 इज इक्वल टू 1 से, तो मैक्सिमम के लिए n2 इज इक्वल टू 2 यूज़ करेंगे, मतलब n प्लस 1 उसी के बाद वाला नंबर. सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. सो लैम्बडा मैक्सिमम इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 इंटू r. लास्ट लाइन ऑफ दिस सीरीज इज कॉल्ड सीरीज लिमिट. फॉर दिस लाइन वेवलेंथ इज मिनिमम विच इज कॉल्ड मिनिमम वेवलेंथ लैम्बडा मीन. सो लैम्बडा मीन के लिए n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा एंड n1 इज इक्वल टू n होगा. सो सेम फार्मूला अगर हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, मतलब ये जो लास्ट फार्मूला हमने डिनोमिनेटर के टर्म में लिखा है, इसी फार्मूला में अगर हमने n2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखा तो ये पूरा स्टेप हमारा ज़ीरो हो जाएगा. सो हमारे पास बचेगा n1 स्क्वायर अपॉन r. सो लैम्बडा मिनिमम इज इक्वल टू n स्क्वायर बाई r. द रेशियो फर्स्ट मेंबर एंड सीरीज लिमिट कैन बी कैलकुलेटेड एज. अगर आपको MCQ में लैम्बडा मैक्स या लैम्बडा मीन पूछा जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1. सो ये तीनों फार्मूला नंबर 3, 4 एंड 5 और ये फर्स्ट फार्मूला जिसके हमने अलग अलग फॉर्मेट्स बनाए, ये सारे फार्मूलाज आपके MCQ और एंट्रेंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. अब डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज़ के लिए हमने पूरी सीरीज़, पांचों सीरीज़ के नाम ट्रांजिशन, लैम्बडा मैक्सिमम, लैम्बडा मिनिमम, लैम्बडा मैक्स बाय लैम्बडा मीन एंड रीजन को हमने एक टेबल के फॉर्मेट में लिखा है, जो आपको MCQ में बहुत ही हेल्पफुल होगा. फर्स्ट वन लाइमन सीरीज़, n2 इज इक्वल टू 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी एंड n1 इज इक्वल टू 1. मैक्सिमम वैल्यू 4/3r, मिनिमम 1/r, डिवीज़न मतलब दोनों का रेशियो 4/3.
ultraviolet region. Balmer series n2 is equal to 3, 4, 5 up to infinity, n1 is equal to 2, lambda maximum 36 by 5 r, lambda mean is equal to 4 by r, lambda max by lambda mean रेशियो 9 by 5 एंड विजिबल रीजन। बाकी की तीनों सीरीज हमें इंफ्रारेड रीजन में मिलेगी। और फास्टन ब्रैकेट एंड पी फंड के लिए मैक्सिमम, मिनिमम एंड रेशियो, ये तीनों कॉलम हमने यहाँ पे लिखी है प्रॉपरली। तो ये पूरा टेबल आपको नोट डाउन करना है और इसी सारे फॉर्मूलाज के बेस पे आपको इस चैप्टर से एमसीक्यूज भी आएंगे। सो इस चैप्टर में हमने मैक्सिमम यूज्ड फार्मूलाज देखे जो आपको कंटिन्यूसली चैप्टर्स में एमसीक्यू सॉल्व करते हुए दिखेंगे, और इसी फार्मूला को आपको लिस्ट बना के रेडी करने हैं अपने एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस few MCQs on the basis of these concepts. Thank you.